Good morning, students. Welcome back to our online sessions of Maths Class 10 syllabus of NCERT. I hope you and your family will be safe in the pandemic situation. So, without any necessary work, don't go outside your homes. If it should be necessary to go outside home, then use the mask. Always use the sanitizers. Always wash your hands. Stay safe and stay home. Now we're discussing about the different topics in our earlier classes, in which we're discussing about the real numbers, about the polynomials. There should be a linear equation in two variable, as well as the trigonometrics and the probability. That are the topics that we're discussing in our previous class. But today we're discussing about the new chapter, that is chapter number 5 in your textbook syllabus, that is called arithmetic progression. Now first of all, arithmetic progression means what? What do you mean by the arithmetic progression? Generally, progression, it means a sequence of number like 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is a part of sequence of number. But if there is any similarity between that, like common numbers, while making a series, if you want to creating a series, and that series having a specific constant numbers, having a specific like non-zero terms. So what do you mean by first of all arithmetic progression? So a sequence in which the difference of एनी ऑफ दैट टू नंबर्स, उसके जो दो नंबर्स दिए रहेंगे उस दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी अ नॉन ज़ीरो. इट इज़ जनरली अ पार्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो कांस्टेंट. देन इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? इट इज़ कॉल्ड एज अ arithmetic progression. So if you want to represent a sequence in which like we implemented first term, that is represented by the a, second term is a plus d, then next term is a plus 2d, a plus 3d, that can be implemented as a part of the specific terms a plus d. So it can be represented as a n minus 1 into d, n minus 1 into d, right? So if you want to write a plus n minus 1 into d, I write here a is still missing, a plus n minus 1 into d. So a sequence in which the difference of any two consecutive numbers having a non-zero constant, then it is called as a arithmetic progression. So in above, it is like a sequence of arithmetic progression in the formation a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to a plus n minus d. In that particular sequence, if you seen that each and every term of that arithmetic progression is a common difference, that is called as what? D. Common difference. If you want to find out the common difference, it is called term 1, it is called term 2, it is called term 3. Different type of terms. So if you want to find out the common difference is in general constant. अगर इनका common difference अगर constant रहता है तभी ये sequence आपकी arithmetic progression होगी. So common difference अगर आपको find करना है तो उसके लिए हम D लिखते हैं, D for the difference. और उसके लिए हमें apply करना होगा T2 minus T1. T2 minus T1, term 2 minus term 1, that is generally implemented as a part of the difference. So term 2 is what? A plus D minus A. So answer will be what? D. Second term is A plus D minus first term, that is D. चलिए उसी तरह दूसरा फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस. T3 माइनस T2. T3 आपके पास A प्लस 2D माइनस A माइनस D. ये एलिमेंट होगा 2D माइनस D, क्या मिलेगा? D. So each and every time when you find out the difference between any two consecutive terms having a constant difference, then it is called as a arithmetic progression. Okay? So arithmetic progression, अगर आपको अलग अलग सीक्वेंस दी है और आपको बोला है कि ये सीक्वेंस arithmetic progression है या नहीं है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो arithmetic progression है या नहीं है उसको चेक करने के लिए जो सीक्वेंस आपको दी होगी उस सीक्वेंस के अंदर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके डिफरेंस फाइंड कीजिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस इफ इट विल बी प्रोवाइड अ नॉन जीरो कांस्टेंट, then it is generally considered as a what? It is called as arithmetic progression. So by comparing of the sequence of any numbers with giving a difference between that two numbers is constant, then it is called as arithmetic progression. So generally you understood what is called arithmetic progression. Now which are the formulas that we have to use in this topic that we are discussing about, which formulas that we have to implement it. For example, अब एक sequence लिखते हैं like even number का sequence. If you implement the sequence of even number 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 up to जो आपका n नंबर से वहाँ तक,
तो ईच एंड एवरी सीक्वेंस हैविंग अ कॉमन डिफरेंस 2, 0 से आप 2 स्टार्ट करेंगे, 2 से 4, ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दैट 2 consecutive terms, always be answer is constant. So this type of terms which giving the answer is always be constant is called as a arithmetic progression. उसको आप arithmetic progression कहेंगे. So कौन से formulas हमें इसमें implement करने हैं? इसमें हमें अलग अलग formulas है. एक n term find करने का formula है, एक sum of n find करने का formula है, उसके अलावा भी कुछ extra formula है, वो हमें implementation करना है. So which formulas that we have to use in this chapter? तो formulas, कौन से फॉर्मूला हमें यूज़ करने हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है टू फाइंड आउट द nth टर्म. अगर सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करना है, टू फाइंड nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म ऑफ n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा? That can be a of n is equal to a plus n minus 1 into d. Instead of a plus n, you also write of t of n, that is called term n. So t of n generally represented like a plus n minus 1 into d. Now this is generally find to sum. If you want to find out the sum of nth term, now second, sum of nth term. If I want to find out the sum of nth term of an arithmetic progression, okay, so if you want to find out the sum of nth term, so it should be used s of n. S of n is equal to, two formulas are there, s of n is equal to n by 2 in bracket a plus l. So if any progression last term is given and first term is given, so that is generally represented as a plus l, s of n, a plus l. Or also we can be apply the other formula in a form of s of n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This formula is also applicable for sum of n where the last term is not given. So in the progression, if last term is not given, then we have to use the formula s of n by 2 2a plus n minus 1 into d. D is a common difference. And if the last term and first term is given, then we can use the formula s of n is equal to n by 2 in bracket a plus l. So these are the general formulas that we have to use as a form of arithmetic progression. Now here also we have to use some additional formulas like a is equal to what? Sn. Now a is equal to what? That is the first term, s1. That is called also t1. t1 भी आप इसको कह सकते हैं. Now अगर a of n हमें फाइंड आउट करना और s of n दिया है तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है a of n is equal to s of n minus s of n minus 1. These are the additional formulas. If we want to find out the term of n in which the sum of n is given, then we have to use this formula a of n is equal to s of n minus s of n minus 1. Now if we have to two terms are there, दो अलग अलग terms दिए हैं और हमें difference find करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है d is equal to am minus an upon m minus n. एक ही जगह पे आप t भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं, वॉट एवर. ठीक है. सो दिस आर द जनरल फार्मूलाज दैट वी हैव टू यूज इन एंटायर चैप्टर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये सारे फार्मूलाज जो है वो सारे फार्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं, जिसमें अगर nth टर्म फाइंड करना है तो किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ऑफ सम फाइंड करना है तो इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, या फिर अगर हमारे पास t ऑफ n फाइंड करना है s ऑफ n पे तो और डिफरेंस है. तो ये सारे फार्मूलाज हमें यूज़ करने हैं. क्लियर. चलिए अभी इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपके एक्सरसाइज 5.1 के अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक नंबर 99 और 100 में होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर 98, 99 और 100. ये तीन पेज नंबरों का व्यूज़ अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं. पेज नंबर 98, 99 एंड 100. नाउ सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ए और डी दिया होगा. लाइक फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन.
फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ए भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए, ए एंड डी बोथ विल हैव। लाइक पहला एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10, राइट। हमारे पास वैल्यू है ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10 और इसके हमें 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स यानी कि A1, A2, A3, A4 ऐसे हमें 4 अलग अलग टर्म्स फाइंड करने हैं। लाइक A1 इज इक्वल टू A, वो क्या होता है 10, वो तो ऑलरेडी दिया है फर्स्ट टर्म। देन A2, A3, A4 और A5, ऐसे 5 अलग अलग टर्म्स मुझे फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स दिया है जिसमें फर्स्ट टर्म तो है, बाकी के 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड टर्म फाइंड करना हो तो होता है a प्लस डी, थर्ड टाइम फाइंड करना हो तो a प्लस 2d, फोर्थ टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म फाइंड करना हो तो a प्लस 4d, राइट। फर्स्ट टर्म के लिए हम a कहेंगे a इक्वल टू 10, सेकंड टर्म को a प्लस डी कहेंगे, थर्ड टर्म को a प्लस 2d कहेंगे, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d कहेंगे, फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d कहेंगे। यानी जो टर्म आप फाइंड करो ना उससे डिफरेंस एक कम होगा। मान लीजिए 98 टर्म आपको फाइंड करना है तो a प्लस 97d लिखना पड़ेगा। जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं उससे एक कम आपका डिफरेंस रहेगा। चलिए अभी इसको फाइंड करते हैं। a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, राइट। चलिए a3 इज इक्वल टू वॉट a प्लस 2d, यानी a2 प्लस डी भी आप लिख सकते हैं। 10 प्लस 2d यानी क्या 2 इंटू डी 20 हो जाएगा 30। 10 प्लस 3d यानी कि 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 40 एंड 10 प्लस 4d इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 50। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 टर्म्स अगर मुझे लिखने हैं सो यहाँ लिखना होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 10, 20, 30, 40 and 50 up to infinite, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें a और d दिया है तो ऐसे आप उसका यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एक दूसरी वैल्यू लेता हूँ जिसमें डिफरेंस 0 दिया हो, लाइक a इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0, ऐसी एक वैल्यू यूज़ करते हैं जहाँ पे a की वैल्यू आपके पास -2 और d की वैल्यू क्या आपके पास 0, a -2 एंड d इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a दैट इज -2, a2 इज इक्वल टू वॉट a प्लस d, a3 इज इक्वल टू वॉट a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू वॉट a प्लस 3d एंड a5 इज इक्वल टू वॉट a प्लस 4d, a प्लस 4d, राइट। लिख दिए सारे टर्म्स। चलिए a2 यानी कि -2 प्लस डायमेंशन 0 क्या होगा आंसर -2, -2 प्लस 2 इंटू डी 0, ये भी -2, -2 प्लस यहाँ भी 0 देन -2, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। देखिए अगर डिफरेंस 0 है तो आप इसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो 0 में जिस वैल्यू को ऐड करोगे तो वो तो सेम ही आंसर मिलेगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -2, -2, -2 अप टू इन्फिनाइट। ऐसे आप कॉमन टर्म्स के यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a और d दिया है तो आप ऐसे उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें -1 और 1/2 वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू -1 और d की वैल्यू 1/2 लेते हैं। a इज इक्वल टू -1 और d की वैल्यू 1/2। ये मेथड्स का भी यूज़ करेंगे जब केवल मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फाइंड करना हो तब, दैट ओनली वी हैव टू फाइंड कि 4 टर्म्स या 5 टर्म्स के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने हो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 इज इक्वल टू a, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ठीक है। सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, वहाँ लिखेंगे -1 प्लस 1/2। सो 2 इंटू -1 -2, -2 प्लस 1 -1/2। चलिए a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। सो -1 प्लस 2d, 2 इंटू 1/2, 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। नाउ a4 a प्लस 3d,
-1 + 3/2, आंसर क्या आएगा 1/2। तो कितने भी आपको सीक्वेंस फाइंड करने हो, वट एवर द नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको फाइंड करना है, तो उसमें केवल इसी मेथड का यूज़ करना होगा। फिर अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो a + 4d यानी कि -4/2 यानी कि क्या हो जाएगा 2, सो दैट इज़ 1। सो AP क्या मिला आपको? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -1 -1/2 0 1/2 1 अप टू इन्फिनाइट। तो ऐसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको फाइंड करना है, बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि उसके जो कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है और उसका डिफरेंस क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, वो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। कि कभी भी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका A और D। तो D अगर हमें चेक करना है कि ये गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए जो D है कांस्टेंट वैल्यू कॉमन डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, उसको सॉल्व करते हैं। नाउ फाइंड फर्स्ट टर्म and common difference. Find first term and the common difference. फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। चलिए उसमें पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कॉमन टर्म एंड डिफरेंस बोथ वी हैव टू फाइंड आउट बाय द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 1 -1 -3 3 1 -1 -3 अप टू इन्फिनाइट, राइट। सो डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ऑलवेज भी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज T2 - T1। नाउ द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्म, द फर्स्ट टर्म जो होता है इसको यहाँ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ओके, सो हियर फर्स्ट टर्म को आप A कहते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड A, that is here what 3, that is here what 3, right। अभी हमें डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 - A1 1 - 3, second term is what 1, first term is -3, then -2, so difference is what -2। so किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको करना पड़ेगा। चलो उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल 5 -1 7 3 ऐसे दिया। देखो केवल हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो चेक नहीं कर रहे हैं, दैट ओनली वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को आप क्या कहते हैं A, सो A इज इक्वल टू वॉट 5। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिया आपको 5, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। सेकेंड टर्म जो है अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, सो D इज इक्वल टू A2 - A1। ओके, सो -1 -5 इज इक्वल टू -6, सो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा आपको -6। तो किसी भी टर्म्स के लिए अगर मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना है या कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो ऑलवेज बी द गिवन एज अ नंबर, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आइडेंटिफाई कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, दैट वी हैव टू बी सॉल्व इट। सो सिंपल क्वेश्चंस कि अगर मुझे सॉल्वेशंस करना है कि विच ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज इन अ फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और 3 टर्म्स आपको उसके लिखने होंगे, 3 टर्म्स और आपको लिखने होंगे, राइट। चलिए सो
Identify the arithmetic progression and write 3 more terms. 3 और टर्म्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। चलिए, सो पहला तो हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद 3 और कॉमन टर्म्स मुझे उसके लिखने होंगे। चलिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला नंबर 2, 4, 8, 16, राइट। ऐसा एक मैंने सीक्वेंस लिखा है 2, 4, 8 और 16, और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला टर्म क्या है, हियर a1 इज इक्वल टू वॉट 2, फर्स्ट टर्म क्या आपका 2 है, राइट। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो सेकंड टर्म माइनस क्या करने का, फर्स्ट टर्म करने का। सो d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट 2, ठीक है। अभी आगे भी चेक करना, सारे कांस्टेंट होने चाहिए। सो d इज इक्वल टू, अभी a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब ये डिफरेंस हो गया, कांस्टेंट तो है नहीं। कभी भी अरिथमेटिक अगर प्रोग्रेशन फाइंड करना है तो सारे टर्म्स जो डिफरेंशिएशन उसके आप फाइंड करोगे डिफरेंस, वो हमेशा कांस्टेंट मिलना चाहिए। डिफरेंस दैट ऑलवेज भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट नहीं है, एक में 2 और एक में 4 मिल रहा है। सो गिवन टर्म इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो गिवन टर्म इज नॉट इन arithmetic progression. So given term is not in arithmetic progression, ऐसा आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करके लिख सकते हो। तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा तो वो arithmetic progression नहीं होगा, तो ऐसा आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद एक दूसरी वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जिसमें इस तरह के arithmetic progression के टर्म्स हमें मिलने चाहिए। उसके लिए लिखते हैं 2, 5/2। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, 2, 5/2, 7, 7/2, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2, 5/2, 3 और 7/2, सॉरी 3 नॉट 7, 3 एंड 7/2। अभी इस क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो आपका दिया है 2, सेकेंड टर्म 5/2, 3 और 7/2। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 2। नाउ डिफरेंस फाइंड करते हैं, डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। सो 5/2 माइनस 2 अपॉन 1, एलसीएम ले लीजिए। सो 5 माइनस 4/2 क्या मिलेगा डिफरेंस, 1/2। इसका डिफरेंस 1/2 मिला। नेक्स्ट स्टेप में जाइए, नेक्स्ट d इक्वल टू a3 माइनस a1, a3 क्या आपके पास 3 माइनस 5/2, इसका एलसीएम 1, 6 माइनस 5/2 क्या मिलेगा, 1/2। तो दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट मिला, 1/2। तो ये कौन सा टर्म हो गया, गिवन टर्म इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो गिवन टर्म इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया। 3 और टर्म्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। 4 आएगा, 9/2 आएगा, 5 आएगा, ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d के फॉर्म में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप कि what we have to study today about the arithmetic progression, what is called arithmetic progression, what are the general formulas that we have to use in these chapters, how we can be find the common difference, what is called first term, what is called s of n, and how we can be determine the given arithmetic progression is a particular sequence or not by using the common difference. So I hope कि sessions you should be easily understood. From tomorrow we'll meet another topics then discussing how we can find the terms using the formula a of n, a plus n minus 1 2d. So students, keep revising, keep studying and keep practicing on this type of questions according to based on your illustration and exercise. Till we meet tomorrow, take care and bye.